میئر کراچی کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد اور اگر مگر کی صورتحال، پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی اہمیت بڑھ گئی۔ تحریک کی کامیابی کے لیے جماعت اسلامی کو 183 ووٹوں کی ضرورت، 367 کے ایوان میں جماعت اسلامی کی 130 نشستیں، پی ٹی آئی کے 62 میں سے 30 ارکان کے ووٹ جماعت اسلامی کو ملنے کا امکان۔ 32 ارکان میئر کو پہلے ہی ووٹ دے چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے 14 اور جے یو آئی کے 4 ووٹ بھی اہمیت اختیار کر گئے۔ تحریک لبیک اور مہاجر قومی موومنٹ کی ایک نشست بھی اہم قرار۔ سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی کے پاس 151 نشستیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے 32 ارکان جہاں کھڑے ہوں گے، جیت اسی کی ہوگی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کر دی۔ صوبائی صدر محمود مولوی کا حافظ نعیم سے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ، کہا ہم ایسے کسی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے، غیر یقینی صورتحال اور ہنگامہ آرائی کراچی کے مفاد میں نہیں۔ سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے بلند دوستی، پاک چائنا فرینڈشپ پارک میں اوپن ایئر جم کا افتتاح۔ میئر کراچی اور چینی کونسل جنرل نے جم کا افتتاح کیا۔ چینی کونسل جنرل کا کراچی کے شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پاک دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پاک میں آنے والے لوگ چینی حکومت کے شکر گزار ہوں گے۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ Great sign and symbol of friendship that you've shown towards us. I think there can be no greater bond than the bond between the people. And when the people of this locality, when the people of this neighborhood would see this beautiful park in their surrounding area, I think they would sincerely appreciate the generosity and the gesture that your country has shown towards us. China-Pakistan economic corridor has been a great game changer for our country. نگراں وزیالہ شہر کار کی خوبصورتی کے لیے سرگرم۔ شارع فیصل پر فٹ پاتھ، انڈر پاسز کی تزئین و آرائش اور فلائی اوورز کی ڈیزائننگ کی ہدایت۔ چوکنڈی قبرستان کے ساتھ قائم تجاوزات ہٹانے کا بھی حکم۔ مقبول باقر بولے شارع فیصل پر آنے والوں کے احساس ہونا چاہیے کراچی خوبصورت شہر ہے۔ نگراں صوبائی حکومت عام انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم۔ وزیر اطلاعات احمد شاہ کہتے ہیں کہ تیاریاں مکمل ہیں، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے انتخابی مہم کے دوران سیکیورٹی تھریٹس بارے سیاسی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا۔ حارث نواز کہتے ہیں چند سیاسی قائدین نے امن و امان کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا۔ پرامن انتخابات کرانا اولین ترجیح ہے۔ رینجرز اور پولیس کو الیکشن کے دوران تعینات کیا جائے گا۔ فوج آئی تو کوئک رسپانس پر ہوگی۔ یہ روز سوال میں روز بہت یقین سے کہتا ہوں کہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور لیکن پھر کوئی ٹی وی پہ کچھ کہہ دیتا ہے، پھر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے، پھر کوئی وزیر اعظم سے جا کے بزنس مینوں کا وفد مل لیتا ہے۔ تو میرا تو اعتماد ہے، لیکن 2-3 دن سے آپ لوگ مل کے ہمارے اعتماد کو شیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم 2008 فروری کے الیکشن کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ متنازع ریٹرننگ افسران کی تقرری، نیا تنازع کھڑا ہونے کا خدشہ، سیاسی جماعتوں نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا۔ نگران سندھ حکومت نے متنازع افسران کو ریٹرننگ افسر نامزد کیا۔ ریونیو کی بجائے دیگر محکموں کے افسران بھی ریٹرننگ افسر تعینات۔ ریٹرننگ افسران کا انتخاب سابق الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان کے دور میں ہوا۔ سندھ حکومت نے عام انتخابات کے لیے 13 افسران کی خدمات واپس لے لیں۔ محکمہ اسکول تعلیم نے تعیناتی کی سفارش کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ آفتاب احمد لاشاری، اشفاق احمد، شفیع محمد، شکیل اختر کی خدمات واپس۔ عزیز الرحمان، اسلم شاہ، عنایت اللہ اور دیگر کی خدمات بھی واپس لے لی گئی۔ کراچی کے عوام کے لیے بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، نیپرا کے الیکٹرک ٹیرف پر حکومتی درخواست کی سماعت 20 دسمبر کو ہوگا۔ سماعت کو اٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر کی جائے گی۔ وزارت توانائی نے دوسری سماہی کے لیے 47 پیسے، تیسری سماہی کے لیے ₹1.25 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی ہے۔ فینسی نمبر پلیٹس، رنگین شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی، پریشر ہارن، پولیس لائٹس اور سائرن والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائیاں۔
ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयों में 300 गुना इजाफा कर दिया। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा कहते हैं अब तक हजारों गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका। रेलवे पुलिस का ऐसा इकदाम, पंजाब से आने वाली उमर रसीदा खातून को तन्हा पाकर अपनी तहवील में ले लिया। मोहम्मद खातून के सामान में 15,76,000 रुपये और जेवरात थे। पुलिस ने बुजुर्ग खातून को बेटों के हवाले कर दिया। पुलिस खातून से मिलने वाली रकम और जेवरात अदालत पेश करेगी। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर पुलिस ने चीनी शहरियों की मदद की। बाग कोरंगी रोड पर खड़े चीनी बाशिंदों को मंजिल पर पहुंचाया। पुलिस ने बाशिंदों की खैरियत दरियाफ्त की, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया। कम्युनिटी एंड रीजनल मीडिया की अहमियत, जामिया अब्दुल हक कैंपस शोबा इब्लाग़ आमा के तहत मुहिम का आगाज़। मकसद गली मोहल्लों में दरपेश मसाइल को उजागर करना था। मुहिम का हिस्सा बनने वाले तुलबा व तालिबात ने मुहिम को सराहा और ज़रूरी करार दिया। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में कम्युनिटी मीडिया का रुझान इतना नहीं है और कम्युनिटी मीडिया पे इतना काम नहीं किया जा रहा, स्टेट लेवल पे काम नहीं किया जा रहा, इसके लिए कोई कवानीन मौजूद नहीं है। तो बहरहाल इस पर आगाही देना आवाम को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है। हम ये लोगों में इसीलिए आगाही फैलाने के लिए और ये बताने के लिए कि जी ये हमें भी अपने मगरबी दुनिया की तरह इसको स्ट्रक्चर्ड करना है ताकि हमारे जो निचली सतह तक जो मसाइल हैं वो ज़्यादा उजागर हों, उस पर बात हो। ताजरों का पेट्रोल 50 रुपए लीटर सस्ता करने का मुतालबा। सदर कागजी बाजार एसोसिएशन याकूब वाली कहते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ मगर हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया। 4-5 रुपए पेट्रोल सस्ता करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जराइम में इजाफे की वजह भी महंगाई है। आलमी मार्केट में जब रेट गिर रहे हैं तो हमारे मुल्क में रेट क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि जो हमारी आवाम है वो दिन ब दिन डाउन से डाउन हो जा रही है। इतनी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सक रही है कि इलेक्ट्रिक हो, बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो या पेट्रोल है, इसकी वजह से सारी महंगाई चल रही है। तो मेहरबानी करके हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वक्त के कि जो रेट आलमी मंडी के हिसाब से आप बढ़ाते हैं तो इसी हिसाब से गिराया भी जाए, नहीं तो ये पब्लिक जो है वो बाहर निकल आएगी। शहरियों की पेशावरी खेड़ी की खरीदारी में अदम दिलचस्पी। अंदरून ली मार्केट में नित नए डिज़ाइन की पेशावरी खेड़ी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है कि कम कीमत होने के बावजूद मार्केट में खरीदार नहीं। पहले 500 मुनाफा रखते थे, अब 200 रुपये कर दिया गया। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग खाएंगे या शॉपिंग करेंगे। तो कहने का मकसद ये हमारी कॉस्टिंग हर तरह से बढ़ चुकी है और प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल लो हो चुका है। आवाम के महंगाई की वजह से आवाम दबी हुए, उसके वजह से ख़रीदारी बहुत कम है। कराची और सिंध का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार रहा है। सिटी कोर्ट में मुनक़दा सेमिनार में मुकर्ररीन का खिताब। तकरीब में लीगी रहनुमा निहाल हाशमी, सदर कराची डिवीजन सलमान खान, सदर कराची बार आमिर सलीम समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची बार के सदारती उम्मीदवार नईम कुरैशी ने कहा कि हमने अपने दौर में आमिर के खिलाफ नवाज शरीफ का साथ दिया। मुस्लिम लीग नून सिंध में मुतहरिक रवा माह के आखिर में नून लीग कराची में 3 जलसे करेगी। मलीर, बल्दिया और मज़ार कायद पर जलसे के इम्कानात हैं। नवाज शरीफ के दौरा सिंध की हतमी तारीख का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को बशीर मेमन और दीगर से मुलाकात करेंगे। उधर नून लीग ने पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरा दी। यासर खान बब्बर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। PS 83 से टिकट के लिए दरख्वास्त भी जमा करा थी। नून लीग की कमाल खान और कासिम अली शाह को भी पार्टी में शमूलियत की दावत। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम और राहीला मक्सी का GDA में शमूलियत का ऐलान। पीर पगारा की क़यादत में GDA का अहम इजलास। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी को न हटाने पर इजहार तशवीश। RO और DRO को मुकर्रर करने का फैसला वापस न लेने पर एहतजाज का ऐलान। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई की पीर पगारा और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। GDA को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने का अज़्म। जमाते इस्लामी ने यूथ मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ कर दिया। हाफिज नईम रहमान का कहना है 60% नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं।
नौजवान मौके न मिलने की वजह से मायूस हो चुके। यूथ प्रोग्राम में शामिल नौजवानों को आम इंतखाबात में जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह से एजुकेशन, इसी तरह से हेल्थ, इसी तरह से और जितनी चीज़ें हो सकती हैं जो नौजवान से मुताल्लिक़ हैं, ये कमेटियाँ भी बनाएंगे। 18वीं तरमीम में तब्दीली सिंधी मुहाजिर फसाद की साजिश करार। आफाक अहमद ने 26वीं तरमीम पंजाब से पेश करने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने शिकवा किया कि इंतखाबी जलसों से रोका जा रहा है। इलेक्शन के नतायज मुतनाज़ होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। PSO में गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ECL से नाम खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत में कैमरे लगाए जाएं, आवाम को भी पता चले। मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म कर दे। 2019 में केस बना, 2020 में अदालत में आए और अभी तक ना कोई गवाह आते हैं, ना पता चलता है केस है क्या। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस अदालत में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सा जुर्म हुआ है यहाँ पर। आप यकीन करें, हम जजों से भी पूछते हैं, नैब से पूछते हैं यार कि हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। बहरहाल पिछली दफ़ा जो नैब का केस मेरे खिलाफ था वो 9 साल चला था, तो अभी तो सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, तो ये भी चल जाएगा। आमदन से ज़ायद असासों के केस में आगा सिराज दुरानी की अदालत में पेशी। एहतसाब अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन जीत कर बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, अदालत को शवाहिद दिए जाएं। PCB के तहत अंडर 16 ट्रायल्स का आगाज। कराची भर से 140 खिलाड़ियों की शिरकत। ट्रायल्स के बाद हर रीजन से एक टीम बनाई जाएगी। एक टीम में 25 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। और शहर कायद ने रंग बिरंगे फूलों के इस्तकबाल की तैयारियां। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख की हिदायत पर महकमा बागात मुतहरिक। टीम की अपनी नर्सरी में फूलों की तैयारी शुरू। फूलों की अफजाइश किस तरह की जाती है, माली ने बता दिया।